भोले के भक्तों व्हाट्सअप. So today is 17th November and I'm going to Brajghat. That is also known as Garhmukteshwar Bridge, जो रेलवे स्टेशन का नाम है. And the road construction work is under progress. You all can see that. I'm excited to visit the Ganga Ji. And yes, I know my hairs look quite sticky. And I'm going to railway station and searching for some auto, e-rickshaw. I can't find anything right now. So quite disappointing for me right now, but it's okay. Railway station is around 1.5 kilometers from my home. So I think I have to go by walk over there. Rest is the will of God. जय हो नंदी जी. चल दिए हैं. So today's plan is quite different as I compare to the older Ganga Ji Yatras, because this time I'm going alone to Brajghat. Most of the time I visited Haridwar recent. So I will let you know what is the motive of this yatra, as I'm traveling alone. It's a one-day trip. I will be get back to my home by the night around 11 or 12, so it's okay. Most of the time we three of us will go to every destination, whether it's near or far from my house, but this time I'm going to alone Brajghat because I have to do the Adhyan of Upanishad, Chandogya Upanishad, plus I have a book which is known as Shaktipeeth Darshan. So time is around 4:15 in the morning and I will reach there by the 9. Although Brajghat is not far from my house, it's just like 65-70 kilometers from my house, but the train I'm choosing, that is just a passenger train, रुकती रुकाती जाएगी. And yeah, I'm super excited to complete the Chandogya Upanishad. And unfortunately I didn't get any auto, e-rickshaw or anything who can take me to the railway station till now, so I have to walk. What should I say more? Yeah, I'm super excited to visit the Ganga Ji. And yeah, one thing more, Kartik Maha is going on, so if you are planning to visit the Ganga Ji another month or anything, you can just go in Kartik month rather than any of the other time. Last year we visited the Haridwar in the Kartik month. We three of us visited the Ganga Ji in Haridwar. We visited in the month of Kartik, but that time cleaning work is process, so that's why Ganga Ji was not in a proper flow, not with a proper wideness. बस ये परेशान ना करें, कोई बात नहीं, मेरे पास इस पे एक केन है तो इससे डरा सकता हूँ. जय हो भगवान जी. So right now I'm quite afraid of roadside dogs. You can hear the sound as well, but I don't care because I have the blessings of God, so nobody can harm me. Even I have the potential to harm everybody. This is just a joke. I'm just kidding. I don't want to harm anybody. Even if I have the power, even I have the money, anything. Jai ho. I am here to help everybody. Whenever I get a chance, I shall go for help. Even financially, even for anything. Not just कि पैसे से ही मदद हो सकती है. I can help the needy persons in any way. One thing more, nobody will get it properly from where I can get the Upanishad and what I'm talking about, all the books. So I purchased, not just me, we three of us purchased all the Purans and Upanishads and many of the religious books from Haridwar. So it's a good thing that I have chosen a place which is related to God, that is
पाप नाशिनी मोक्षदायिनी गंगा जी, and I will do the Adhyana of Tirthas in front of Ganga ji, in the ghat of Ganga ji. So yeah, this is a great opportunity for me to get something from the side of God. And the last thing and the first thing is, I am super blessed that God will invite me to visit their temples, visit their holy places. It's amazing. I think half of the way I have completed. कोई ऑटो नहीं मिला. And I always do some of the things that even those things will enhance my karmas. In short, ऐसा कुछ भी मैं करना चाहता हूँ जिससे मेरे कर्म सुधर सकें, बिकॉज माई फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ दिस लाइफ इज़ गेटिंग द मोक्ष, गेटिंग द सेल्वेशन, एंड दैट इज़ नॉट ईजी फॉर एवरीबडी. सो गेटिंग सेल्वेशन इज़ नॉट अ ईजी टास्क, एटलीस्ट फॉर ह्यूमन्स in the era of Kali Yuga, because yes, it's easy, super easy as compared to other yugs, but I don't think everybody will think about moksha, salvation, enlightenment. But yeah, I am the human who thinks about moksha, and I want moksha not for me only, for three of us. Salvation, I will explain you what is salvation. Salvation is something, birth and death, that is just a, in short यही है कि मोक्ष मतलब आत्मा, soul will reach up to the maximum level of itself, that is the चरण of God. भगवान जी के चरणों में आत्मा समा जाएगी, that is मोक्ष. और सामने माता मंदिर है लाइन पार में. जय हो माता जी. अभी आने वाला है जस्ट, तो सही है, चले चले जा रहे हैं. और ये वीडियो काफ़ी लंबी बनी क्योंकि एक ही वीडियो में बना दूंगा ना मैं सब कुछ, तो चलते हैं. बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, आई डोंट फाइंड एनीबडी ऑफ माई एज who is talking about salvation, moksha, even not the old age peoples as well, because everybody is busy in celebrating happiness and everything by just earning money and spending and investing. I don't think so that is the motive of become a human. So as God gave you a chance to reduce your sins, to end up your sins, then it's your duty to make it complete, because this is the only life when you have the ability to make sure you will get out of the 84 lakh yonias, that is 84 lakhs yonis. So अगर अब भी कुछ नहीं कर रहा ना, you are not doing enough in your life, तो भाई मैं तो कर ही रहा हूँ. क्योंकि ज़िंदगी में पैसा ज़रूरी है, बट उतना नहीं कि मेरे कर्म ही मुझसे छूट जाएं. बिकॉज दीज लिल यात्राज इन माई लाइफ विल ब्रिंग अ इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम विच आई कैन स्टेप इन डे बाई डे इन द एरा ऑफ गॉड, इन द सर्किल ऑफ गॉड. सो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है कि मैं चाहता भी यही हूँ, एंड आई फाइंड हैप्पीनेस एज वेल. मतलब मुझे खुशी भी मिलती है, मैं खुशी भी ढूंढ लेता हूँ यात्रा करने में, मंदिर मंदिर जाने में. इंडिया, आई ऑलमोस्ट रीच द रेलवे स्टेशन. मोर स्टेप्स टू गो टू रीच द रेलवे स्टेशन. या इट्स ओके फॉर मी दैट आई एम हैविंग अ मॉर्निंग वॉक एज वेल. हाँ, सही है, ऑल इज़ गोइंग गुड. सो आई विल डायरेक्टली सी यू इन द ट्रेन. See you after a while. Yeah, so my motive of this life for me is to get the salvation in the end, but I don't know which day is gonna be my end of the life, but still I'm trying for having the best of the best things. I always live daily as thinking that this is the last day, and yeah, whenever I get a chance to visit the temple, visit the holy places, visit the religious places, I will go there.
as that's the only thing will make happen those things I want in my life. And if I'm talking about the ख्वाहिश कि मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिशें क्या हैं, तो I just want to travel the every single temple of India, which is a man-made temple or a ancient temple, which has a history. But I just want to visit the each and every temple of every city of every district of every state around India, and after that I will go out of India for just visiting the temples or getting the positive energy from those places. And I don't have any plans right now related to my future, because future is not in my hands, in my opinion, because God has every time decided everything to me, and who can lead me? God will take me to the right place which is definitely beneficial for me. And yeah, railway tracks are just nearby, just behind these houses, these quarters. पैदल पैदल ही आ गए यार रेलवे स्टेशन तक. I didn't get any auto. It's just a bad luck. ठीक है, मॉर्निंग वॉक भी हो गई. It's okay. I can't consider this to be just a bad luck. It's of course a sign of a good luck. ओम नमः शिवाय. हाँ जी की भोले के भक्तों, so I got the ticket for 45 rupees and train is not arrived yet and is yet to come. So I'll go to the platform number 5 and we'll wait for the train to come. May I have your attention? See you. Train number 1, 2, Hair still 7, quite sticky. It's okay. It's not a good hair day for me. आनी तो ट्रेन इस वाले प्लेटफॉर्म पे चाहिए, बट यहाँ तो अभी कुछ पता ही नहीं है, और जो कोचेस नंबर शो हो रहे हैं वो भी डिफरेंट ही हैं. देखते हैं नीचे चल के. हाँ तो गंगा मैया के भक्तों भी फाइनली अराइव्ड एट गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज, यानी कि ब्रज घाट. ये पीछे ट्रेन है और आ चुके हैं. छोटा सा स्टेशन है, 2 प्लेटफॉर्म है और पूरे 24 घंटे में 2 ट्रेन इधर से रुकती है तो 2 ट्रेन उधर से. तो ज़्यादा ट्रेन भी नहीं आती यहाँ पे, मतलब क्रॉस करती है बट रुकती नहीं है. तो 2 में से एक ही है. लेकिन रात को जब वापस जाएगी तो मैं इसी से जाऊँगा. ऐसा है कुछ रेलवे स्टेशन ब्रज घाट का, गढ़मुक्तेश्वर का. और इस वाले इसमें से आए हैं अभी हम, और इसमें को जाएंगे वापस. और ये नीचे जाने का रास्ता है, और यहाँ पे NH24 है. ये देखो बस भी जा रही है. चलिए जी चलते हैं. झोला वाला. तो अपना प्रोग्राम ये है अभी के लिए कि ये जो NH24 का हाईवे वाला ब्रिज है, उस साइड में जाके नहाने का घाट बना हुआ है. नहाने का घाट इस साइड में, बट सारे लोग वहीं नहाते हैं, तो वहाँ पे जाके नहाऊंगा. उसके बाद जो मुझे अध्ययन करना है, या तो मैं यहाँ आ सकता हूँ क्योंकि यहाँ लोग नहीं आते हैं इस वाली साइड में, पुल की इस साइड में. अदरवाइज़ मैं स्टेशन के आसपास कहीं ना कहीं ऐसी शांत जगह जहाँ मैं आराम से अध्ययन कर सकूँ उपनिषद का, तो वो करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं. तो चल दिए हैं गंगा मैया के भक्तों. ये है पीछे रेलवे स्टेशन ब्रज घाट का. तो आ चुके हैं ब्रज घाट पे. तो यहाँ से जाएंगे, ये जो दिख रहा ना क्लॉक टावर, इसके इस साइड में जाके नहाऊंगा मैं, या फिर सब घाट ही है दूर तक, तो कहीं भी जा सकते हैं. बट ये क्लॉक टावर ब्रज घाट की मेन हाईलाइट है. तो आ चुके हैं गंगा जी के भक्तों, गंगा जी के घाट पे. देखो ये पंडित जी वगैरह बैठे हैं, ये मंदिर है, और नीचे गंगा जी हैं. चलते हैं नीचे फिर. नमामि गंगे. हम तीनों लोग आते ज़्यादा अच्छा रहता, बट हाँ तीनों लोग जल्द ही आएंगे कार्तिक मास में दोबारा, मतलब अभी और 10-15 दिनों के अंदर ही अंदर.
आंसू भोले के भक्तों, एवरीथिंग इज़ डन। स्नान हो चुका है, पूजा अर्चना कर ली है और ये ट्रेन जा रही है। देखो अच्छी खासी भीड़ है, यहाँ हमेशा भीड़ ही रहती है और सही है। माता जी और भाई होते तो काफ़ी सही रहता, बट जैसा मैंने पहले बताया कि हम तीनों लोग फिर से आ रहे हैं बहुत जल्द, मतलब विदिन 10 डेज़ और विदिन अ वीक, तो सही है। अब इस वाले पुल के उस साइड में जाता हूँ जगह देखने, जहाँ की थोड़ा एकांत हो, एरिया शांत हो। आ चुका हूँ मैं वहाँ से थोड़ा सा दूर, और यहाँ पर भीड़ ही नहीं है, देख लो तो यहीं है दूर, तो या तो यहीं बैठ सकता हूँ, देखो वहाँ तो भीड़ है, बट मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे अगर बैठूँ यहाँ धूप आए, क्योंकि यहाँ ऊपर ना फ्लाई ओवर है, तो धूप आएगी तो सूर्यदेव की एनर्जी भी मिलती रहेगी और काफ़ी ही ज़्यादा सही लग रहा है। आखिर मोक्षदायिनी माता, पाप नाशिनी माता के चरणों में खड़े हैं तो स्पेशल और यूनिक तो फील होगा ही होगा। हाँ जी, भगवान जी के भक्तों तो आ चुके हैं, जगह देख ली है, ये रही गंगा जी हमारी, है ना। जस्ट कुछ ही कदम पे, 2 कदम से दूर बैठा हूँ गंगा जी, क्योंकि थोड़ा सा नीचे है और ये सब अपना सामान है और यहीं अपनी पूजा आराधना शुरू करेंगे। बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पापनाशिनी माता, मोक्षदायिनी माता, दुनिया का भला करना, आशीर्वाद हमसे। हर हर महादेव। हाँ तो गंगा जी के भक्तों हो चुकी है स्टार्टिंग, ये है गंगा जी और ये बैठा हूँ मैं, और आज स्टार्ट होगा हमारा छांदोग्य उपनिषद, जबकि मैं थोड़ा सा पढ़ भी चुका हूँ। देखो टैग यहाँ तक आ चुका है, तो आज इसको कंप्लीट करना है, बस इसी उद्देश्य से यहाँ आज हम आए हैं। और गंगा मैया कृपा बनाए रखें जगत के हर इंसान पे, हर पशु पक्षी पे। बोलिए नमामि गंगे। हाँ तो गंगा जी के भक्तों, टाइम इज़ अराउंड 10:30 एंड यू कैन सी दैट अद्भुत दृश्य। कौए भी जल पी रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा बोट्स चल रही हैं। कार्तिक मेला लगा हुआ है, पूरे कार्तिक मास पूर्णिमा से पूर्णिमा लगता है। और एक ख़ास चीज़ और देखो, पुल पे फेंसिंग लग गई है ना, जाली दोनों साइडों में लग गई है, तो जिससे कि ना लोग जैसे कुछ भी गंगा जी में चढ़ाते हैं, अब वही है कि जा रहे हैं गाड़ी में से ऐसे ही फेंक दिया या कुछ भी, तो वो गंदगी वहाँ से कम हो सकती है। बट हाँ, ट्रेन वाले पुल से अभी भी मैंने देखा लोगों को, बहुत सारी ट्रेन्स निकली और बहुत लोगों ने कुछ कुछ फेंका, बट वहाँ से मैं देख रहा हूँ, देखो दिखाता हूँ जूम करके, ये देखो दिख रहा है ना फेंसिंग के ऊपर, ये सब लोगों ने जो वो चलते चलते फेंका है, मैंने दूर तक दिख रहा है मुझे, जो फेंका है सब कुछ वही है। और फैसिलिटी बहुत ज़्यादा सही है, अफोर्डेबल रेट्स हैं बोट्स के। और यहाँ मैं खड़ा हूँ और ये मेरा अपना आसन, पुस्तक, ये गंगा जी, बस और क्या चाहिए जीवन में। ये कुछ पीछे जाने का रास्ता है, पता नहीं ये रेलवे स्टेशन जाने का है या कहाँ जाने का है। इधर भी एक मंदिर है, ये कुछ बोट्स खड़ी हैं, ये पता नहीं ख़राब है या सही है। सही वाली तो वैसे इधर तो है ही है। हाँ जी गंगा मैया के भक्तों, और यहाँ पे अब जो है काफ़ी ज़्यादा मरकटों का आवागमन हो रहा है। monkeys are going here and there, so that's why I have to leave this place right now। भाई झुंड में आ रहे हैं और मैं यहाँ अकेला हूँ कि कुछ भी मैटर हो गया ना तो बस, और नीचे गंगा जी हैं, तो इसलिए यहाँ से मुझे को चलना चाहिए। मैं काफ़ी देर से बैठा हुआ, इधर उधर हो रहा है उनका पूरा झुंड, डर लग रहा है मेरे को। वैसे डर तो खैर क्या ही, भगवान के सामने बैठा हूँ तो काहे का डर, और इनमें भी भगवान का अंश है, मुझ में भी। बट यार यही है कि एक दो होते तो ठीक है, बहुत सारे हैं। बाकी जो सामने वाला बैंक है ना, जो सामने वाला किनारा है, उस पर भी मेला लग रहा है। जब मैं आया था जब तो भीड़ नहीं थी,
अब लोग बाकायदा वहाँ तक कार भी ला सकते हैं, वहाँ से कार आती है इस साइड में, तो बिल्कुल वहाँ तक नहीं आती बट वहाँ तक आती है उस साइड में। मैं भी दिखाता हूँ बैक कैमरे से। और उस साइड में पूरे मेला ही मेला लगा हुआ है। फ़िलहाल मैं यहाँ से जाता हूँ पहले। और ये ट्रेन आ रही है, देखो ये गरीब रथ है ये। मेरे ठीक पीछे बंदर ही बंदर है। देखो अभी तो एक भैया भगा के गए हैं, एक वो जा रहे हैं ना सामने। ओ देखो मैं दिखाता हूँ सामने वाले किनारे पे, देखो ये कार खड़ी हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट संडे में आएंगे हम, तो वहीं चले जाएंगे। बट वहाँ उधर खाने की दुकान नहीं है शायद से, हो सकता है वहाँ पे हों, बट कभी उस साइड गए नहीं हैं। आते तो यहाँ बहुत ज़्यादा रहते हैं बट इधर नहीं आए कभी, मतलब उस वाली साइड में, हमेशा इस वाले किनारे पे ही आते हैं। देखो लहरें देखो गंगा मैया की। अब यहाँ से चलना चाहिए और टाइम हो रहा है 1। नमामि गंगे, कुछ ज़रा खान पान कर लें, फिर अपना उपनिषद कंटिन्यू करेंगे। ये है हमारा छांदोग्य उपनिषद, ये गंगा जी का किनारा, और ये मैं बैठा हूँ। बोलिए ओम नमः शिवाय। माता जी और भाई होते तो ज़रा बढ़िया रहता। चलो ठीक है, उनके हिस्से का भी प्रॉब्लम मैं ही लेके जाता हूँ तीनों के लिए। ये शंकर जी बैठे हैं, चलो जी चलते हैं अब। हर हर महादेव। इधर से ही अपनी ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, पर इसका कुछ रुकने का पता है नहीं। हमारी ट्रेन है रात को 8 बजे, इधर से आएगी, इधर को जाएगी जैसे ये जा रही है। बाय बाय। देखो कितनी झुक रही है ट्रेन, पटरियाँ इंक्लाइंड है ना यहाँ पे। बोलिए हर हर गंगे। कहाँ तक जा रही है क्या ही पता। चलो साहब, जहाँ तक जा रही है आनंद विहार से जयनगर, तो मेरे सिटी होके ही निकलेगी। चलिए बाय बाय। अपनी तो रात को 8 बजे, अभी 7-8 घंटे और है। ट्रेन में चेंज कर लिया है बस, दिस इज़ इनफ। मतलब अब थकान हो रही है। हर टाइम हो रहा है कुछ 2 बजे का। रेलवे स्टेशन में बैठा था बट अब और ज़्यादा हिम्मत नहीं है पुराना पढ़ने की यार। 6-7 घंटे हो गए। हाँ 5-6 घंटे तो हो ही गए। 10 बजे से 9:30 10 बजे से सोचा है कि अब बस से ही जाता हूँ अपने घर। बस केन है अपने पास, गंगा जल लेके फिर यहाँ से चलते हैं। और कुछ ज़रा गरीबों में दान वगैरह कर दूँ, वो तो अभी रह ही गया था। मैंने सोचा था दोबारा डुबकी लगाऊंगा बट अब बस अब नेक्स्ट संडे को आ तो रहे हैं दोबारा से, तो बाकी थोड़ा बहुत तब के लिए भी छोड़ते हैं ना। बोलिए ओम नमः शिवाय। नमामि गंगे। यहाँ पे सुबह आरती करी थी शंकर जी की, जल अभिषेक करा था, तो अब यहीं से जल लेके बस यहाँ ऊपर से बस पकड़ के अपने घर। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है सामने, देखो दिखाता हूँ। देख रही है कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो भीड़ होने की वजह ये है, छठ पूजा वाली भीड़ हो सकती है ये, और पक्का वही है। देखो कितनी भीड़ है, देखो कितनी नाव खड़ी है।